Ji, IAS Additional Secretary MoHUA, Srimati Rupa Mishra Ji, IAS Joint Secretary MoHUA, and Dr. T.K. Sridevi Ji, Secretary Municipal Administration Department. I request all the dignitaries on the dais to kindly be seated, and we shall now honor all the dignitaries on the dais with our traditional bouquet, a green bouquet. मनोहर लाल जी, आपका आदर और सम्मान के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। Let's welcome him with a huge round of applause, ladies and gentlemen. And now we would like to may I present a bouquet to the Chief Minister of Telangana, Shri A. Revant Reddy ji, and now to Shri Kanubhai Desai ji, Honorable Minister of Urban Development and Urban Housing, Government of Gujarat. Now may be present a bouquet to Shri Ponguru Narayan ji, Honorable Minister of Municipal Authority and Urban Development, Government of Andhra Pradesh. Shri Srinivas Katikithla ji, we welcome you, sir, with a green bouquet. He is the Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. And may I now welcome Shri Ramakrishna Rao ji, Chief Secretary, Government of Telangana. And we also formally welcome Dr. T.K. Sridevi ji, Secretary, Municipal Administration Department. मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूं कि वे परंपरागत दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें. I request all the dignitaries on the dais to kindly light the traditional lamp to officially mark the commencement of today's event. Once again, we extend our warm welcome to our honorable ministers. Invite Secretary Mohan. Can we please welcome MoHUA Secretary Shri Srinivas Katikithla ji onto the dais to take today's proceedings of the meeting forward. Thank you. On behalf of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, and on behalf of the Honorable Minister for Housing and Urban Affairs, Shri Manohar Lal ji, I take great pleasure in welcoming Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Revant Reddy ji, Honorable Urban Development Minister of Andhra, Shri Narayana ji, Honorable Minister Urban Development of Gujarat, Shri Kanubhai Desai ji, my esteemed colleague, Chief Secretary of Telangana, my senior colleagues who are present here from the states of Telangana, from the states of Gujarat, from Maharashtra, Andhra Pradesh, and all distinguished dignitaries who have gathered for today's very, very important regional conference. As a part of the Honorable Ministers and the Government of India's outreach in creating a team urban for taking all of us forward towards Vikasit Bharat 2047, it has been the endeavor of the Honorable Minister to create and have regional meetings. And as many of you are aware, on the 17th of July, this decision was taken, and thereafter we had the first of its kind meeting in Bangalore, and very shortly thereafter, today in Hyderabad, we are again meeting for this regional conference. I take great pleasure and privilege in welcoming all of you to this. Friends, I only want to underscore the importance of this event because, as you know, urbanization of our country is the greatest economic force that is going to help improve our economic prospects, improve the life of our citizens, and propel our country towards achieving the $30 trillion status. And in order for all of us to work in that direction,
for us to harness our collective energy, we have to work out ways of organizing ourselves, of collaborating, of cooperating in a spirit of cooperative federalism. Today, as all of us are aware, urbanization and affairs relating to urbanization are handled at the micro level, at the municipalities, at the municipal corporations, at the state urban development departments, at the level of the state governments, at the federal, the union government level. But all of us are working in a similar direction, in a single direction, with a single objective, that is to achieve economic growth and improve the life prospects of our citizens. This exercise is something that is extremely important, because in a federated environment, for us to work in a closely cooperative and a closely collaborated way, these 4 R's are extremely important. So once again, I warmly welcome you to this. And in order that we get down to business very quickly, it has been decided that we will have the formal function slightly later. We will have a breakout groups that will function, first to discuss the issues pertaining to Hyderabad and the state of Telangana, where the Honorable Chief Minister and Honorable Minister will guide that particular group in their discussions and guide us in how to take our work ahead in that direction. On the other side, led by the Honorable Ministers from the states and the teams of the states, accompanied by the senior officials who have come from Ministry of Housing and Urban Affairs, there will be breakout sessions where they will all be meeting and specifically discussing issues pertaining to the centrally sponsored programs and issues pertaining to the states. So all these breakout groups will function simultaneously, and at the end of this breakout session, we will all be reporting back so that we will be able to convey the collective suggestions of these breakout groups to the Honorable Ministers, the Honorable Chief Minister, and thereafter, subject to their guidance, and on their guidance, we'll be taking decisions on these issues. At this juncture, without taking much more time, I would like to request Sridevi ji to take the activity of check distribution to some of the... पहले सर इसका चेक डिस्ट्रीब्यूशन करा लें, फिर चेक डिस्ट्रीब्यूशन करा के फिर करा एक है. So I'll request Sridevi ji to organize the distribution of the checks, and thereafter I take great privilege to invite Honorable Chief Minister Telangana to kindly guide us and address us also. Now we proceed to the distribution of PM Swanidhi loan check for 10.93 crores to 3,648 street vendors. पीएम स्वानिधि लाभार्थियों को 10 करोड़ 93 लाख का चेक सौंपा गया है. I now request our Honorable Chief Minister of Telangana, Shri A. Revant Reddy ji, to kindly address the gathering. Urban Development Ministers రీజనల్ మీటింగ్ హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న సందర్భంగా కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రివర్యులు మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్
మున్సిపల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ నారాయణ గారు, ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులందరూ ఈ సమావేశంలో పాల్గొని పట్టణాభివృద్ధిని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి, రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా సహకరించుకోవాలి, తద్వారా భారతదేశం యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని మార్చడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నంలో భాగంగా పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రివర్యులు తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారిని నేను అభినందిస్తున్నా. వారికి తెలంగాణకు స్వాగతం పలుకుతున్నా. భారతదేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వికసిత్ భారత్ 2047 100 సంవత్సరాలు స్వతంత్ర ఉత్సవాలను జరుపుకునే సందర్భంగా $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప దేశంగా, ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా నడిపించాలనే ఆలోచనతో, అందులో ప్రధానంగా పట్టణ ప్రాంతాలు, ఈ దేశ జనాభా పట్టణీకరణ చెందుతున్నది. పట్టణాల యొక్క ప్రణాళికలు, పట్టణాల యొక్క మౌలిక వసతులను పెంచడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టడం, పట్టణాలలో ముఖ్యంగా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ మీద ఇంకా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టడం, అందులో భాగంగా హైదరాబాదు నగర విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించడాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాగతిస్తున్నది. మాకు సంబంధించిన ప్రణాళికలు వివిధ సందర్భాలలో కేంద్ర మంత్రి గారికి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మేము ప్రతిపాదించిన ప్రాజెక్టులను చాలా వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకొని పరిశీలిస్తున్నది. అవన్నీ కూడా వేగంగా అనుమతులు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ నగర అభివృద్ధికి సహకరించాల్సిందిగా కేంద్ర మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 ఒక బృహత్ ప్రణాళికను తీసుకొని ఈ దేశంలో ఉండే అన్ని రాష్ట్రాలకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శంగా ఉండాలని, ఈ దేశంలోనే అభివృద్ధిలో మొదటి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాలించాలి అని మేము ప్రణాళికలు రచించుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం. డిసెంబర్ 9, 2025 రోజు తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ని మేము డెడికేట్ చేయబోతున్నాము. అందులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనలని, అదేవిధంగా 2034కి $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా, 2047కి $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని మేము ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం. నరేంద్ర మోడీ గారు 2047కి $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీ టార్గెట్ పెట్టుకొని ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నారో అందులో 10% మేము కంట్రిబ్యూట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. ఈరోజు దేశంలో 2.5% జనాభా ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం 5% ఎకానమీని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. కానీ 2047కి 10% ఆఫ్ నేషనల్ ఎకానమీలో తెలంగాణ రాష్ట్రము భాగస్వామ్యం చేయాలని, అందుకోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిన కీలకమైన అంశాలు, ప్రధానంగా మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారు అనుమతులు ఇస్తే వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది. అందులో మెట్రో రైల్ విస్తరణ కావచ్చు, మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కావచ్చు, రేడియల్ రోడ్స్ కావచ్చు, హైదరాబాద్ నగరానికి తాగునీటి సమస్యను తీర్చడానికి కృష్ణా గోదావరి జలాల తరలింపు కావచ్చు, హైదరాబాదును పట్టి పీడిస్తున్న కాలుష్యాన్ని తొలగించి ట్రాఫిక్ సమస్యను తగ్గించడానికి, హైదరాబాద్ నగరంలో 3000 ఆర్టీసీ బస్సులు ఉన్నాయి, అవి డీజిల్తో నడుస్తున్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా నగరం బయటకు తరలించి రాబోయే 1 ఇయర్లో 3000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ హైదరాబాదు నగరంలో ఈరోజు నడవడానికి మేము ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్, మూసీ నది ప్రక్షాళన, వీటన్నిటిని కూడా ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా అభివృద్ధి చేయాలని, అదేవిధంగా వేగంగా పెట్టుబడులు. నౌ హైదరాబాద్ ఈజ్ సెంటర్ ఫర్
global capability centers, data centers, IT, pharma, and medical and health. These are hubs for industries. వీటన్నిటి కోసం ఇప్పటి వరకు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నాలెడ్జ్ హబ్ ఇట్లాంటి వాటిని అభివృద్ధి చేసినాం. ఇప్పుడు మేము ఒక సిటీనే కట్టాలనుకుంటున్నాం. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ. It is going to come around 30,000 acres. We wanted to compete with New York, Tokyo, Japan, or Singapore, or Dubai. We don't want to compete with my neighboring states. They are my friends. They are my well-wishers. So, world is one unit. I wanted to compete with Singapore or Dubai. So, for that, I need Government of India support. From Telangana, कटर जी, जो नरेंद्र मोदी जी जो कहा है विकसित भारत 2047, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो सोच रहा है, तेलंगाना की तरफ से, तेलंगाना राज्य की तरफ से हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए कि तेलंगाना राइजिंग 2047. हम लोग ये टारगेट बनाए कि 2034 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2047 के तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी. अभी हमारा पॉपुलेशन है 2.5%. We are contributing 5% economy in the country. Our target is up to 2047. We wanted to contribute 10% economy of this country. मोदी जी जो सोच रहा है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, 100 साल जब हमारा आजादी होकर हम जो खुशियां मना रहे, तब तक तेलंगाना भी इस देश तरक्की में हम लोग हिस्सा लेना चाहता है. और हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है. इस जनता के लिए खाली 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, 29 स्टेट्स है, मगर हर राज्य उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, these 5 metropolitan cities are contributing like anything in Indian economy. और जीडीपी ये 5 शहरों से आ रहा है. कि इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जो अर्बन डेवलपमेंट में जो प्लानिंग बना रहा है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए एक अलग पॉलिसी बना दो. क्योंकि इस देश अगर आगे तरक्की करना है तो अर्बनाइजेशन इज द ओनली वन सॉल्यूशन. वेयर इंडिया हैज टू ग्रो, इंडिया हैज टू कॉम्पीट विथ अदर यूएस, जापान और चाइना. वी हैव टू चेंज आवर प्लान्स. Yes, agrarian economy, agriculture economy is one factor, but urbanization is important factor in this country. Urbanization अगर होना है, एक तरीका से अगर डेवलपमेंट आना है, तो urban ministry has to plan for something. Particular metropolitan cities. Metropolitan cities अगर हम डेवलप करते गए, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अगर बनाए तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं. पूरा दुनिया कोविड के बाद चाइना +1 कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ढूंढ रहा है. चाइना +1 इज ऑल्टरनेट इज इंडिया. तो वो काम करना है तो हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारे करना है. तो आप खुद, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप मुख्यमंत्री बहुत साल किए, मुख्यमंत्रियों का तकलीफ सबसे ज्यादा आप जानते हैं. मोदी जी भी पहले 12 साल मुख्यमंत्री काम किए, गुजरात मॉडल बनाए, तो आप दोनों को पता है मुख्यमंत्रियों का तकलीफ कैसे रहता है. और केंद्र सरकार ने अगर साथ नहीं दिए तो हम तरक्की करना इतना आसान नहीं है. जहां पर स्कोप है वहां पर आप एंकरेजमेंट भी करना है. और यूर सीनियर, हमारे जैसा नौजवान को आप मदद दिए तो हम बड़ा भाई समझ के मोदी जी को हम सीधा सीधा कह दिए, इस देश का प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री के लिए बड़ा भाई है. तो बड़ा भाई बड़ापन दिखा के हमको मदद दिए तो हम तरक्की कर सकते. 10% इकोनॉमी हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहता है. तो उसके लिए मेरा मेट्रो रेल आप मंजूर करना है, मेरा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए आप मदद देना है, मेरा रीजनल रिंग रोड के लिए, मेरा रेडियल रोड्स के लिए, ये हैदराबाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए. पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. दिल्ली में सब कुछ है मगर पोल्यूशन के साथ सब कुछ बंद पड़ रहा है.
स्कूल से लेकर सरकार दफ्तर तक, पार्लियामेंट तक हम पोल्यूशन की वजह से हम दिल्ली बंद करके चलाना पड़ रहा है। इस देश का राजधानी पोल्यूशन में ऐसा तकलीफ अगर उठा रहे हैं तो हम लोग दूसरे शहरों को वो उससे कुछ लर्निंग, कुछ हम लोग सोचकर आगे, क्योंकि हैदराबाद कनेक्टिविटी है, वेदर कंडीशंस है, मिक्स्ड कल्चर है, सब कुछ है हैदराबाद में। तो ये हैदराबाद अंबेडकर खुद ने सेकंड कैपिटल के लिए प्रपोज किया था। मैं ये नहीं कह सकता हूं सेकंड कैपिटल बना दो, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो लेवल पे देना ही पड़ेगा। जितना आप दिल्ली में फोकस कर रहे हैं, जितना आप अहमदाबाद में सबरमती रिवर फ्रंट बनाने के लिए जितना फोकस कर रहे हैं, हमारा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए भी आपके मदद बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपसे हमको सब कुछ मदद मिलने वाला है। हम ये हैदराबाद शहर को, वी आर in IT, we are in pharma. Now 70% of GCs have come to Hyderabad. Why? Because of my infrastructure, because of my working culture, because of knowledge hub, educational institutes like ISB, like Nalsar, Law University, IIT Hyderabad. I have 175 engineering colleges. Every year I'm producing almost 110,000 engineering students from my state. My people are working in Silicon Valley. Today, Silicon Valley is mine. If I say something, it is going to reflect in Silicon Valley in US. We are contributing like anything in US economy. Why can't Indian economy? हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। जब चुनाव आएंगे हम चुनाव लड़ेंगे। जब राजनीति करना है, चुनाव के समय पर हम राजनीति करेंगे। उसके आगे हम राजनीति में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसा कुछ हमारे तेलंगाना राज्य के तरफ से मैं वादा करना चाहता हूं। हमको कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, अभी डेवलपमेंट करना एक ही है। मैं फाइनली एक बात बोलना चाहता हूं, 1994 to 2004, 2 consecutive terms Mr. Chandrababu Naidu was Chief Minister. 2004 to 2014 डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार चलाए। 14 to 24 ऑलमोस्ट 10 years चंद्रशेखर राव जी ने मुख्यमंत्री बने। ये 30 साल में सरकार बदलते गए, नेता बदलते गए, मगर हमारा पॉलिसी कभी बदला नहीं। हम इंप्रूव किया हमारे पॉलिसीज को। कभी भी तेलंगाना में पॉलिसी पैरालिसिस कब नहीं था। यस, आई हैव मेनी डिफरेंसेस विथ प्रीवियस गवर्नमेंट एंड लीडर, बट आई डोंट हैव एनी डिफरेंस इन पॉलिसीज। अच्छे जो पॉलिसी है हम आगे लेकर जाएंगे। अगर कुछ पॉलिसीज में गैप है तो पॉलिसी हम इंप्रूवाइज कर लेंगे। केंद्र सरकार से भी हम मदद लेके काम करना चाहता है। हमारे पॉलिसीज में अगर आप कुछ सुझाव दिए आपके एक्सपीरियंस से, हम लोग एज इट इज अमेंड कर लेंगे। आपके सुझाव, आपके नेतृत्व में हैदराबाद शहर को, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, हम अगल बगल के राज्य में कैपिटल सिटी से कंपटीशन नहीं है। मैं सिंगापुर, दुबई से कॉम्पीट करना चाहता हूं, टोक्यो से कॉम्पीट करना चाहता हूं। उसके लिए आपके मदद बहुत जरूरी है, आपके एक्सपीरियंस भी जरूरी है, नॉट ओनली मनी। I wanted to take your experience, how to develop, how to go forward. With your experience, your able leadership, we are there to work together. आपके मदद बहुत जरूरी है तेलंगाना के लिए। मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी और खट्टर जी दोनों हैदराबाद के लिए स्पेशल अटेंशन देने वाले हैं, देंगे। धन्यवाद। थैंक यू। May I now request Honorable Minister Manohar Lal ji to kindly address us. Namaskar and a very warm welcome to our Chief Minister of Telangana, Shri Anumula Ravanta Reddy ji, Shri Kanubhai Desai ji, Honorable Cabinet Minister of Finance, Urban Development of Gujarat, Shri Ponguru Narayana, Honorable Minister of Municipal Administration and Urban Development of Andhra Pradesh, and other officials from states and union territories. रेवंत रेड्डी सीएम साहब ने कहा कि मुझे आपका स्वागत करना है।
अब मैं तो समझा कि 2-4-5 मिनट में स्वागत करेंगे, उसके बाद अगला काम शुरू करेंगे। इन्होंने स्वागत करने के बहाने जो कुछ भी कहना था सब कह दिया और बहुत अच्छे प्रकार से अपनी अपेक्षाएं भी हमारे सामने रखी हैं। रेड्डी जी, हम साथियों के साथी हैं। जो साथ देगा उसका हम डबल साथ देंगे, जो एक कदम आगे चलेगा हम 4 कदम आगे चलेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य ये हम लेकर के चल रहे हैं। और विकसित भारत बनाने के लिए कोई केवल देश का नारा दिल्ली में बैठ करके या हमारे प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार नारा देगी और उससे विकसित होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि देश के हर राज्य को, हर सिटी को, हर गांव को, हर व्यक्ति को विकसित होना होगा। विकसित राज्य की कल्पना, विकसित भारत की कल्पना किसी एक नागरिक, एक परिवार, एक गांव, शहर को बिना विकसित किए संभव नहीं है। तो इसलिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ने से ही ये सब संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होगा। हम जानते हैं कि देश में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके अंदर आज की डेट में अगर हम कहें तो देश की 140 करोड़ आबादी में 50 करोड़ आबादी शहरों की, अर्थात नियरली 35-37% ये शहरों की आबादी है। लेकिन जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, लोग शहरों की अपनी आबादी तो बढ़ ही रही है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र को भी अपने आप को म्यूनिसिपैलिटीज में कन्वर्ट किया जा रहा है, गांव से लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस प्रकार से आगे आने वाले 2047 तक हमारी आबादी लगभग 50% ये अर्बन आबादी हो जाएगी। और जहां तक अर्बन आबादी का कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, आज ऐसा माना जाता है कि ये हमारी जीडीपी, नेशनल जीडीपी का 60% इज कंट्रीब्यूटेड बाय अर्बन एरियाज। और आने वाले समय में ऐसा भी अनुमान है कि हम अपने शहरों को जिस प्रकार से विकसित करना चाहते हैं, जैसे एक स्मार्ट सिटीज के नाते से आगे बढ़ने की हमारी कल्पना है। 2050 में आज जो 60% कंट्रीब्यूशन हमारी है, 2050 तक 80% जीडीपी का शहरों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए इन शहरों के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। हर बात को सोचना है। बाकी हर शहर की अपनी अपनी डिमांड्स है, अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना होगा। नोडल इस नाते से शहरों का काम वैसे तो म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मे है सारा, लेकिन उसमें सपोर्ट करने के लिए स्टेट्स अपनी सपोर्ट करेंगी, सेंटर अपनी सपोर्ट करेगी। वी आर सपोर्टिव रोल वी आर हैविंग। तो सपोर्टिव रोल में जितना भी काम हमको करना होगा हम सब करेंगे। मेट्रो की आवश्यकता है, मेट्रो की चिंता करनी है सबको, सारे देश की मेट्रो की चिंता करनी है। अपना देश मेट्रो में बहुत फास्ट स्पीड से और आगे बढ़ रहा है। 2002 में पहली मेट्रो जो है दिल्ली में शुरू की गई थी। 2004-5 में मात्र 5 शहरों में मेट्रो चल रही थी, जो आज 2025 में 24 शहरों के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है। लगभग 1100 किलोमीटर मेट्रो चला रहे हैं। जिस स्पीड से हम बढ़े हैं, दुनिया में कोई देश आगे नहीं बढ़ रहा। यूएसए, चाइना हमारे से बहुत पहले से मेट्रो में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ा करके वी आर वेरी नियर टू द लेंथ ऑफ मेट्रो इन यूएसए। यूएसए में 1400 किलोमीटर है, हम 1100 पर पहुंच गए हैं। इन जस्ट 2-3 इयर्स हम यूएसए को पार कर जाएंगे, क्योंकि 800-850 किलोमीटर पाइपलाइन में है मेट्रो। हर शहर की आवश्यकता है, यहां की भी आवश्यकता बताई गई है। कुछ एक यहां का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में टू स्टेप इन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन वो मैं रेवंत रेड्डी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। और अब बहुत जल्दी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहां के मेट्रो में अपनी जो पार्टिसिपेशन है पूरी करेंगे। दूसरी यहां की डिमांड कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, मूसी रिवर। अब इतने वर्षों से ये क्यों नहीं हुआ, इसका कोई ब्लेम तो किसी के ऊपर नहीं दिया जा सकता,
लेकिन आगे उसका जो सारा प्लान बनाया गया है, बहुत तरह के फंड्स सेंटर भी देता है, बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट दूसरी एजेंसी से भी मिल सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिल सकता है, अन्य संस्थाओं से भी मिलता है। तो सबके माध्यम से इस बार उसका जो पहला फेज है, इन नियर फ्यूचर मूसी का शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ वर्षों में मूसी का जो भी प्लान है वो सारा कंप्लीट होगा। चाहे उसमें मूसी का रिवर फ्रंट है, चाहे उसमें स्वच्छ पानी का उसमें बहाव है, क्योंकि जब तक ट्रीटेड वाटर हम अपने वेस्ट वाटर को उसके अंदर ट्रीट करके नहीं डालेंगे तब तक मूसी रिवर की कल्पना करना एक कठिन है। तो वो डबल काम है जो हमको उस पर करना है। इसी प्रकार पीएमएवाई मकानों की जो आवश्यकता है वो भी सब शहरों को हम देनी है। पानी की जो समस्या है उसको भी हमको दूर करना है। तो जितने भी काम हैं उन सबको दूर करने के लिए हम लोग पहले तो दिल्ली में बैठ करके सारा काम करते थे, लेकिन पिछले वर्ष ये विचार आया कि दिल्ली में सब स्टेट्स की सारी चिंता सब शहरों की करना संभव नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने रीजनल मीटिंग्स करके कुछ प्रदेशों को बुलाकर वहीं हर प्रदेश की चर्चा एट लेंथ करने की योजना बनाई। अभी कुछ महीने पहले बेंगलोर में हमने सदर्न स्टेट्स की जितनी भी यूनियन टेरिटरीज और सदर्न स्टेट्स को बैठ करके एक साथ विचार किया। 6 स्टेट्स वहां आई थी और संयोग से आज भी हमारा जो ये साउथ वेस्टर्न पार्ट है, 6 स्टेट्स आज हम बैठ करके विचार कर रहे हैं। हर एक पहलू पर एक एक बिंदु पर विचार करेंगे, जो आवश्यकता होगी हम पूरा करेंगे। ये ठीक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपेक्षाएं बहुत की जाती हैं। आपने कहा कि आयु के हिसाब से कह लें, एक्सपीरियंस के हिसाब से कह लें, या मोदी जी जैसा मुख्यमंत्री जो आपने उदाहरण दिया, गुजरात के वो रहे 12-13 वर्ष, मुझे भी 10 वर्ष तक हरियाणा का मुख्यमंत्री के नाते से मौका मिला है शासन करने का। तो मुख्यमंत्री की समस्याएं, राज्य की समस्याएं क्या होती हैं, ठीक कहा कि भली प्रकार से हमको मालूम है। अनुभवों की बात जहां तक है, मैं अनुभव की बात अपनी शेयर करना चाहता हूं। सेंटर की तरफ सब देखते हैं, लेकिन हमारा अनुभव यह है कि जनता को साथ लेकर के चलना होगा। जनता कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस स्लोगन को अगर हम चरितार्थ नहीं करेंगे तो शायद जो अपेक्षाएं वो पूरी नहीं होंगी। क्योंकि स्टेट की अपनी सीमाएं हैं, वैसे ही सेंटर की भी अपनी सीमाएं हैं। वहां भी जनता से पैसा आता है। कोई अलग से पैसे छापने की मशीन तो वहां भी नहीं है। स्टेट के पास भी जनता का ही पैसा आता है। अलग से इंडस्ट्री तो कोई स्टेट चलाते ही नहीं है। लेकिन बहुत आज कई प्रकार के जिसको कहना चाहिए मॉडल्स खड़े हो गए हैं। पीपीपी के मॉडल बहुत खड़े हुए हैं। जनता के पास पैसा बहुत है, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बहुत हैं, अपने देश के भी हैं, बाहर के देशों के लोग भी हैं। मुझे सुनकर के अच्छा लगा कि कल आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कोई एक विशाखापट्टनम में एक सम्मेलन किया है और 18 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने अपने प्रदेश में एक रास्ता बनाया है 2 दिन पहले ही। हम भी यहां करते ही हैं, सब प्रदेश करते हैं। हमने हरियाणा में भी किया था। वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात में तो कई वर्षों से मैं देख रहा हूं जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं। उन सबका सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी कल्पना है शहरों की वो हम पूरी करेंगे। क्योंकि देश का अगर कहा जाए विकसित भारत के अगर हम मिरर के रूप में देखते हैं तो आवर सिटीज आर आवर मिरर्स। दुनिया में जब जाते हैं, चाहे हम दुबई जाएं, सिंगापुर जाएं, हांगकांग जाते हैं, लंदन जाते हैं, जिन भी बड़े देशों में जाते हैं, तो उस शहर के स्वरूप को देख करके उस कंट्री का पता लगता है कि देश कैसा होगा। तो हम भी चाहते हैं कि अपने देश में दुनिया के लोग, चाहे वो हैदराबाद में आए, चाहे दिल्ली में आए, बेंगलोर में जाए, चेन्नई में जाए, जाने के बाद पता लगना चाहिए कि ये देश ऐसा है। हमारी कल्पना योजना बहुत अच्छी है। डिटेल में तो जब मीटिंग्स में बातचीत करेंगे वहां इसकी चर्चा करेंगे। आज मैं साथ ही जो ये 10 करोड़ रुपए का एक 10 करोड़ 93 लाख रुपए का
जो एक चेक दिया गया 3648 स्ट्रीट वेंडर्स को, किस प्रकार से हम सामान्य समाज, गरीब समाज की चिंता करते हैं। मोदी जी ने जो योजना बनाई स्वनिधि, इस नाते से 3 बार हर साल लोन देने का, एक जो 3 किस्तों में 10,000 रुपया एक बार, फिर उसका 20,000, फिर 50,000, अब इस बार उसको बढ़ा करके 10 से 15,000 किया गया, 20 से 25,000 कर दिया गया है। और जो 50,000 के लोन की पेमेंट करता है, यानी जो लोन लेता है, उसको साथ में 30,000 रुपए का एक क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, ये भी दिया गया है, ताकि रिवॉल्विंग फंड उसके पास 30,000 रुपए का लगातार रहे। तो किसी भी सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अपने व्यवसाय के माध्यम से ऊपर उठने का एक बहुत अच्छा अवसर ये मिला है। करोड़ों की संख्या में पूरे देश भर में लोगों को सहायता दी जा रही है। योजनाएं बहुत हैं, आज ये अवसर नहीं है उन सब योजनाओं को गिराने का, बताने का, लेकिन हम तो ये है कि इन सब शहरों में आगे हम कैसे बढ़ें। स्पेशल एक फोकस इस बार शहरों पर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा बजट में करवाई है कि हम शहरों का अर्बन चैलेंज फंड, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया इसके लिए स्पेयर करेंगे, और जिसके साथ 1 लाख करोड़ रुपया स्टेट्स और 2 लाख करोड़ रुपया अदर फाइनेंसिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लेकर के 4 लाख करोड़ रुपए लगा करके जो भी शहरों की ऐसी चीजें हैं उस शहर में, उस स्टेट के नाते से जो कुछ अच्छा समझते हैं उसमें वो लगा सकते हैं, ताकि अपने शहर को कैसे हम इकोनॉमिक हब बना सकें। पहले से ही हैदराबाद इकोनॉमिक हब है, लेकिन और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसका कंट्रीब्यूशन भी जो होगा वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो मैं तो इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम शहरों के साथ खड़े हैं, शहर जनता साथ मिला